Hello my dear students, and in the last lecture we are already completed exercise 3.2 and today we will learn about tests for divisibility of numbers. ओके हमारे पास नंबर्स गिवन रहेंगे, हमें उनमें टेस्ट करना है, मतलब सो फर्स्टली लुक एट हियर divisibility by 10. So this statement, so look at this statement. If a number has 0 in the ones place, then it is divisible by 10. So we have any example? So student, look at here. If a number has 0 in the ones place, हमारे पास जो नंबर गिवन रहेंगे वंस के प्लेस में अगर 0 है, so then it is divisible by 10. So we have any example? 100 and 123. So वंस के प्लेस में 0 है, so 10 से डिविजिबल, 10 से डिवाइड हो सकता है. देन 123 10 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स आपको यही एग्जांपल नोट करना है. अगर वंस की प्लेस में 0 है, 0 गिवन है, एज वेल एज एनी एग्जांपल is also divisible by 10. ओके, सो 10 से डिविजिबिलिटी का रूल है, लास्ट में वंस की प्लेस में एनी नंबर वंस की प्लेस में 0 अगर है, सो देन इट इज डिविजिबल बाय 10. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. So students, secondly we will learn about divisible by 5. So look at here, divisible by 5. So this statement, a number which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. So we have any example? Divisibility by 5. A number which has either 0 or 5 in its ones place is divisible by 5. So students, any number, we have any example, any number given है जिसमें लास्ट में 0 और 5 अगर है, so it is divisible by 5. We have an example 1 to 0, then 1 to 5. So लास्ट में 0 है, देन वंस की प्लेस में 5 है, एंड वंस की प्लेस में 0 है. और हमारे रूल में है 0 वंस की प्लेस में 0 और 5 गिवन रहना चाहिए. सो 1 to 0 डिवाइड बाय 5. 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, देन 1 to 5 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15. ओके, divisibility, that means पूर्णतः डिवाइड, then it is called be completely divide होना चाहिए.
remainder is 0. Okay, so look at here, 120 5 से डिवाइड हो जाएगा completely, then 125 will 5 से completely डिवाइड हो जाएगा. So it is divisibility by 5, 120 and 125. Okay, so take a screenshot. So students, as well as divisibility by 2. So a number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place. A number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 or 8 in its ones place. हमारे पास any where we have any numbers given जिसमें लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8, that means वंस की प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 गिवन अगर है, so it is divisible by 2. So we have an example 120, 22, 34 and 56, 48. So it is completely divided by 2. 2 6 is 12, 2 0, 2 1 is 2. Okay. 3 4 divided by 2 1 is 2, 2 7 is 14, 56 divided by 2, 2 2 is 4, 2 8 is 16, then 48, 2 2 is 4, 2 4 is 8. Okay. So look at here, all digits complete divided by 2. Then because in ones placing 0, 2, 4, 6 or 8. Okay. So take a screenshot. So divisibility by 3. Let's look at this statement. If the sum of the digits is a multiple of 3, then the number is divisible by 3. So look at this statement. If the sum of the digits is a multiple of 3, then the number is divisible by 3. So students, we are already learn about what is multiple. Okay. So again, we have given any numbers, then all digits sum. Okay. देन जो आंसर हमारे पास गिवन होगा वह 3 का मल्टीपल होना चाहिए. सो लुक एट हियर, टू प्लस 1
sorry 21, 36, 54. Okay, so look at here. First 21, 2 plus 1 is equal to 3. So 3 is divided by 3. 3 का मल्टीपल है 3. 3 1 जा 3. Then 36. 3 plus 6, 6, 7, 8, 9. Then 9 is divided by 3. 3 3 ja 9. Then 54. 5 plus 4, 9. Then 9 is also divided by 3. 3 3 ja 9. Okay. So all numbers is completely divided by 3. Okay. So student, because जो हमारे पास नंबर, अगर हमारे पास 2 डिजिट 3 डिजिट के भी नंबर हैं तो उनमें ऑल नंबर्स का हमें सम करना है फर्स्ट में. देन सम के बाद जो आंसर हमारे पास गिवन होता है उसमें 3 को डिवाइड करना है. अगर वो डिवाइड हो जाता है सो वो डिविजिबिलिटी बाय 3 में आएगा. या फिर हमारे पास गिवन नंबर्स हैं उनमें ऑल डिजिट्स का सम करके जो आंसर गिवन है वह 3 का मल्टीपल होना चाहिए. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट. So student, divisibility, that means completely divided, then remainder is 0. Okay, आपको इसमें ध्यान रखना है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए एंड completely डिवाइड होना चाहिए. Then we will learn divisibility by 6. 2 multiply 3 is equal to 6. So अगर जो नंबर 2 and 3 से डिवाइड हो सकता है तो वह 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. So हम इसमें if a number is divisible by 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also. So student, look at here. If a number is divisible by 2 and 3, हमारे पास we have any given number. So अगर वह 2 and 3 both 2 and 3 दोनों से डिवाइड होता है so then is divisible by 6. तो वह 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा. अगर 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है so it is not divisible by 6. दोनों से कंडीशन यह है कि 2 and 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए. So we have an example 18. 18 2 से डिवाइड होगा. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 2 7, 2 9 जा 18. ओके, ओके. सो फर्स्टली हमने 2 से डिवाइड किया. 2 9 जा 18. देन 3 से डिवाइड किया. 3 6 जा 18. सो आल्सो डिवाइड बाय 6. 6 3 जा 18. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. So students, secondly divisibility by 4. So look at rule. A number with 3 or more digits
more digits is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4। सो स्टूडेंट 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है, अगर हमारे पास वी हैव एनी नंबर्स गिवन देन लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इट इज डिविजिबल बाय 4। सो वी हैव एन एग्जांपल 2 1 2। सो लास्ट में 2 डिजिट्स 1 and 2। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सो 12 लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है, देन हम डिवाइड करके देखते हैं ऑल नंबर को। 4 3 जा 12। सो 212 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। सो 4 से डिविजिबिलिटी के रूल में हमें चेक करना है वी हैव, अगर हमारे पास कोई एनी नंबर गिवन है तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करके देखना है। देन अगर 4 से डिवाइड हो सकता है तो ऑल नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 4। अगर ये 2 नंबर 4 से डिवाइड नहीं होंगे तो ये ऑल नंबर 4 से डिवाइड नहीं होंगे। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। So students, secondly, divisibility by 8. So look at the rule. A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digits is divisible by 8। 4 के रूल में हमने क्या देखा था कि लास्ट के 2 डिजिट्स को हम डिवाइड करके देखते थे। 4 से अगर डिवाइड हो रहा है तो ऑल नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, देन 8 की डिविजिबिलिटी में हम देखेंगे लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ऑल नंबर से डिवाइडेड बाय 8। सो लुक एट 2 एग्जाम्पल 9 2 1 6। लास्ट के 3 डिजिट 2 1 6 डिवाइडेड 8 2 जा 16, 5 बचेगा, देन 8 7 जा 56। सो अब हम इसे डिवाइड करके देखेंगे। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 9 1 बचेगा, देन 8 1 जा 8, 9 10 11 12, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16। सो लुक एट हियर, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं देन कम्प्लीटली डिवाइड, आप ध्यान रखेंगे डिवाइड कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ओके, देन ऑल नंबर्स इज आल्सो डिवाइडेड बाय 8। ओके, एज वेल आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट में ध्यान रखना, 8 के डिविजिबिलिटी नियम में लास्ट के 3 डिजिट में आपको ध्यान देना है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। So students, secondly, divisibility by 9 if the sum of the digits of a number
is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. So look at here. अगर हमारे पास एनी नंबर्स गिवन है, हम उसका सम करेंगे, देन जो आंसर हमारे पास प्राप्त होता है उसे हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे. अगर वह 9 से डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास जो नंबर गिवन है वह भी 9 से डिवाइड हो जाएगा. ओके. सो 18 1 + 8 = 9. 9 डिवाइड बाई 9 कम्प्लीटली डिवाइड होगा 9 से. Okay, as well as other example. Five, 2, 8, 3. 5 + 2 + 8 + 3. Then 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. 18 divided by 9, 9 2 is 18. So completely divide by 9. Okay. 9 के डिविजिबल में आप रूल 3 और 9 में ऑल डिजिट्स का हम सम करेंगे. देन अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो हम 9 से डिवाइड हो रहा है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9. एंड 3 में 3 के मल्टीपल आना चाहिए. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. सो स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी बाय 11 के डिविजिबिलिटी में हमको राइट हैंड साइड से काउंट करना है वैल्यू को. राइट हैंड साइड से सम की इवन की प्लेस में जो वैल्यू रहेगी उन्हें ऐड करना है. एंड ऑड की प्लेस में जो वैल्यू रहेगी उन्हें ऐड करना है. देन इन दोनों में डिफरेंस. ओके. So we have, I explain with an example. So look at here. 308. Example first. 308. 1. राइट हैंड साइड से काउंट करना है. सो 1 ऑड. ओके. प्लस ऑड नंबर लेंगे तो हम 1 और 3 की प्लेस में. ओके. 3 + 8. देन इवन की प्लेस में 0. 8, 9, 10, 11. सो 11 - 0 = 11 डिवाइडेड बाई 11 1. ओके. सो लुक एट हियर. इवन एंड ऑड की प्लेस, इवन की प्लेस में जो वैल्यू है उन्हें ऐड करना है. देन ऑड की प्लेस में जो वैल्यू है उन्हें ऐड करना है. देन इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है. डिफरेंस या 11 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए. सो दैट इज अ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11. वी हैव एनी एग्जाम्पल. 6, 1, 8, 0, 9. सो ये वंस की प्लेस में 2, 3, 4, 5. ओके. इवन नंबर ऑड नंबर 1, 3, 5. इवन नंबर 1 और 4. ऑड नंबर ये इवन नंबर. ओके. सो फर्स्टली हम ऑड नंबर को ऐड करेंगे. 6 + 8 + 9. एंड इवन नंबर 1 + 0. 9, 10, 17, 20, 23 and 1. 23 - 1 = 22. 11 2 is 22. So it is divisibility by 11. Okay. So take a screenshot. इलेवन के डिविजिबल में आप ध्यान रखेंगे कि
इवन की प्लेस में जो वैल्यू है उन्हें ऐड करना है, एंड ऑड की प्लेस में जो वैल्यू है उन्हें ऐड करना है। देन डिफरेंस फाइंड करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास जो आंसर आता है वो 11 से या तो डिवाइड होना चाहिए, या यहाँ जो आंसर है वह 0 होना चाहिए। ओके, वी हैव, आई एक्सप्लेन, वी हैव अदर एग्जाम्पल। So look at here, 1 3 3 1, वंस की प्लेस में, ऑड की प्लेस में 1 3, 3 + 1 4, 4 - 4 = 0। ओके, तो ये भी 11 से डिविजिबल होगा, एंड ये भी 11 से डिविजिबल होगा, बिकॉज दिस इज 0 एंड इट इज डिविजिबल बाय 11। सो टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन। So students, this is your homework, exercise 3.3 of page number 57 and 58। आपको एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना है। ओके, थैंक यू।